Okay, so welcome you all in boiling and condensation lecture 2, and the agenda of this class we will discuss about the condensation heat transfer, type of condensation, analysis of heat transfer for film condensation over vertical flat plate, McAdam corrections, and effect of non-condensable gases on condensation and condensation on horizontal tube and tube bank. And the last topic is heat pipe. Okay, so let's start one by one. What is the condensation heat transfer? Condensation is a process which is a very reciprocal to the process of boiling. In boiling process, what happen, the liquid phase is converted into a vapor phase. That means heat is absorbed by the process. But in a condensation process, that is a conversion of vapor phase into a liquid phase by releasing a latent heat. Clear? So by the phase conversion, both are the different thing. Clear? And if you are talk about the concept is a vapor is condensed when it reaches the saturation temperature. See, this is the saturation temperature. When it reaches the saturation temperature at its existing pressure and then heat is removed from it. इसको आप समझिए कि अगर कोई एक वेपर है, उसका कोई भी प्रेशर है, से फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अगर उसका जो भी सैचुरेशन टेम्परेचर है उस वेपर का, अगर किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट करती है और उसका टेम्परेचर भी सैचुरेशन टेम्परेचर पर या उससे बिलो है, तो वहां पर वेपर जो है वो अपना फेज कन्वर्ट करके लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी. A vapor is condensed when it reaches the saturation temperature at its existing pressure and the heat is removed from it. In engineering applications, the removal of heat from a vapor is made by bringing it in contact with a cold solid surface. The phenomena is usually referred as a surface condensation. Clear? During the process of condensation, the condensate क्या होता है आपको कंडेंसर में बताया गया होगा. कंडेंसेट मतलब जो आपका जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, वो उस लिक्विड को हम लोग कंडेंसेट बोलते हैं टेक्निकली. During the process of condensation, the condensate formed on the surface flow down the surface under the activity of gravity. ठीक, ये मैं अभी आगे डिस्कस भी करूंगा. इफ द लिक्विड वेट्स द सरफेस, अगर लिक्विड जो है पूरे सरफेस को वेट कर देता है, a smooth liquid film is formed which flow down along the surface. This is called film condensation. If the liquid does not wet the surface, droplets are formed which fall down the surface in some random fashion. This is called the dropwise condensation. Is that clear? तो यही चीज मैं आगे आपको डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज द फिल्म वाइज कंडेंसेशन एंड व्हाट इज द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us discuss about the film wise condensation. Say for example there is a surface and this surface maintained at a constant temperature Ts, and this is a surface temperature which is the lower the saturation temperature of that vapor. जो वेपर इसके साथ कांटेक्ट कर रही है उससे इसका टेम्परेचर कम है, यानी उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर वेपर का है उससे इसका टेम्परेचर कम है, तो कंडेंसेशन के लिए मस्ट कंडीशन यही है. ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपका जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और आप देखें यहाँ पर ये लिक्विड इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सरफेस को पूरी तरह से वेट कर रहा है. ठीक, तो एक फिल्म लिक्विड की आप देखें यहाँ पर अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी एक फिल्म क्रिएट हो रही है, इसको इसलिए इसको हम लोग फिल्म वाइज कंडेंसेशन बोलते हैं. If the condensation take place continuously over the surface and condensate film cover entire condensing surface, the fall down under the action of gravity, the situation is called the film wise condensation as shown in the figure. Clear? Due to the presence of liquid, जिसको हम लोग condensate बोल रहे हैं, film over the surface, fresh vapor is not able to contact. Definitely जो वेपर इसके ये जो एक बाउंड्री लेयर बन रही है, इस बाउंड्री लेयर के बाहर जो फ्रेश एयर है, अगर इस पूरे सरफेस को एक फिल्म जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स हैं, जिसके अंदर लिक्विड है, तो आपका फ्रेश वेपर इसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएगा. तो जाहिर सी बात है कि फिल्म वाइज कंडेंसेशन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड,
film over the surface, fresh air is not able to contact the condenser surface, so that mass of condensate decreases because the liquid film act as a thermal barrier in between the vapor and the surface of condenser. Is that clear? इसी जगह पर अगर हम ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन देखें, व्हाट इज द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, तो आप इसको डायग्राम में देख पा रहे होंगे. इफ ट्रेसेस ऑफ ऑयल, अगर जो सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर वैसे ही सेचुरेशन टेम्परेचर से कम रखा गया, लेकिन अगर इस सरफेस पे हम ऑयल लगा दें, पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें, इस तरह के सरफेस जो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हो, इफ ट्रेसेस ऑफ ऑयल, ये देखिए, इफ ट्रेसेस ऑफ ऑयल, पेंट्स, ग्रीस are present over the highly polished surface during the condensation, then film of condensation is broken into a droplets. Definitely due to the high surface tension, ये जो ये फिल्म बन रही थी, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या होगा कि जो ऊपर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटे बनेंगे और धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ जब आएगा तो वो ड्रॉपलेट बड़े होते जाएंगे. फॉर वर्टिकल सरफेस, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, the size of each droplet increases and the condensation surface is exposed for a new vapor. Definitely आप ये एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में नई वेपर लगातार कांटेक्ट करेगी. तो आप अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंपेयर करें ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन और फिल्म वाइज कंडेंसेशन में, तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिल्म वाइज कंडेंसेशन. तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द रीजन in drop wise condensation rate of heat transfer is more as compared to the film wise condensation. So the simple answer is that in a drop wise condensation more area is available for fresh vapor to contact the condensing surface, so that the mass of condensate is more. So definitely due to the action of gravity, the size of each droplets increases and the condensation surface is exposed for a new vapor contact, so that the heat transfer rate in the drop wise condensation is much more than the film wise condensation. Is that clear? लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का हमेशा होगा ऐसा पॉसिबल नहीं. इनिशियल जब आपने ऑयल के पेंट्स और ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं तो शुरुआत में तो आपका ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होगा, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन द सरफेस टेंशन इज रिड्यूसेस, क्या होगा, ये ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे करके फिल्म वाइज कंडेंसेशन में कन्वर्ट होती जाएगी. क्लियर? तो ये डिपेंड करता है सरफेस की प्रॉपर्टी पर कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कब तक मेंटेन रहता है. इज दैट क्लियर? ओके. सो अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ फिल्म वाइज कंडेंसेशन की, बिकॉज ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की एनालिसिस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका शेप अनडिफाइन है और टाइमिंग अनडिफाइन है, इसलिए हम लोग फिल्म वाइज कंडेंसेशन करेंगे तो डेफिनेटली ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इससे ज़्यादा ही मिलेगा. और जो फ्लो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो फ्लो हम लोग लैमिनार फ्लो कंसीडर कर रहे हैं. क्लियर? दैट मीन्स जैसे आपने नेचुरल कन्वेक्शन में देखा था ओवर द वर्टिकल फ्लैट प्लेट, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ पर है. यहाँ पर देखिए मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया है और टेम्परेचर प्रोफाइल आपको बनाया है. मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो टेम्परेचर है, दिस सरफेस टेम्परेचर इज़ यूनिफॉर्म. अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इधर ये वेपर है, इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है. डेल इज़ द थिकनेस ऑफ दिस बाउंड्री लेयर. इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो है वो लिक्विड है. आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ABCD. ABCD इज़ अ डिफरेंशियल एलिमेंट जो हमने कट किया है. और दूसरा जो ये प्लेट है, इस प्लेट को हमने यूनिट विड्थ ना मान के हमने बी विड्थ माना है. क्लियर? तो अगर आप इस ABCD को देखेंगे तो मैंने 3D में यहाँ पर भी इसको बनाया है. ABCD आप इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का शेप आपको दिखेगा. B इज़ द विड्थ ऑफ दैट प्लेट. क्लियर? तो उसी के हिसाब से इस एलिमेंट का भी ये विड्थ हो जाएगा. अगर ये डेल है और मैं ये वाई डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ से फ्लैट प्लेट से AB फेस का, ये वाई डिस्टेंस है, तो AC आपका कितना बचता है, बिकॉज दिस इज द डेल माइनस वाई. इज दैट क्लियर? अब अगर आप इसमें देखोगे कि जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे इसमें क्या होगा, ये AB चूँकि इसके जो आपने वॉल्यूम कंसीडर किया है, ये जो आइसोमेट्रिक व्यू में ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम कंटिन्यूअसली जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ये वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स वॉल्यूम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी इन दैट वन. सो हियर आई एम राइटिंग दिस टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसेट इज T-saturation एट इंटरफेस. ये जो इंटरफेस है यानी CD, इस फेस पर आप जो दिख रहा है यहाँ का जो टेम्परेचर है, दिस इज अ सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ दैट वेपर.
एंड इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू द सरफेस टेम्परेचर Ts। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ इस इंटरफेस पर तो ये सेचुरेशन टेम्परेचर के बराबर है, लेकिन धीरे धीरे करके रिड्यूस करता है सरफेस टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि सरफेस टेम्परेचर मेंटेन एट अ लोअर टेम्परेचर ऑफ द वेपर, saturation temperature of that vapor. At the wall, the velocity at the wall is 0 due to the no slip condition and gradually increases towards the interface and reaches maximum at liquid vapor interface. Clear? तो ये सारी चीजें आप लोग पहले भी देख चुके हैं। Now for the heat transfer analysis we follow some assumptions. वो assumptions कौन कौन से हैं? पहला assumption, heat transfer across the liquid film is pure condensation. Clear? इसके ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो CD फेस आप कह सकते हैं, ये जो CD फेस है इस पर प्योर कंडेंसेशन हो रहा है। सेकेंड वन, द एक्सेलरेशन ऑफ कंडेंसेट इज नेग्लिजिबल। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि जो फिल्म है वो फिल्म की थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होती है, और जो थिकनेस नेग्लिजिबल होने की वजह से मास ऑफ कंडेंसेट बहुत क्वांटिटी में नहीं रहता। मास ऑफ कंडेंसेट बहुत क्वांटिटी में नहीं है तो उसमें ग्रेविटी का एक्शन भी कम आएगा। क्लियर? तो ग्रेविटी का एक्शन कम आएगा तो एक्सेलरेशन उसको कम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ कंडेंसेट इज नेग्लिजिबल। क्लियर? ये assumption है हमारा। सी पार्ट, द वेलोसिटी ऑफ वेपर is low as compared to condensate. Quite obvious because mass of liquid is more as compared to the mass of vapor. So velocity of vapor is low as compared to condensate, so it will not exert drag on the condensate. Clear? ये बात समझ में आया? तो कोई drag force इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों की velocity में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वेपर की velocity को हम लोग negligible भी बोल सकते हैं। The flow of condensate is laminar and प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो पोजीशन है और यहाँ पर जो पोजीशन है, इस पूरी पोजीशन में जितनी भी प्रॉपर्टी इस कंडेंसेट की हैं वो यूनिफॉर्म, यानी ये टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड कर रही। जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर ही कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर। दिस इज Ts प्लस Tsat डिवाइडेड बाई 2। नाउ एज्यूम द प्लेट विड्थ इज B एंड कट अ एलिमेंट्री वॉल्यूम फ्रॉम द कंडेंसेट एट y डिस्टेंस। ये देखिए y डिस्टेंस पर मैंने एलिमेंट कट किया, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? दिस डिस्टेंस इज डेल माइनस वाई। सो दिस वन इज डेल माइनस वाई। जो AC डिस्टेंस आपको दिख रही है, दिस वन इज डेल माइनस वाई, दिस वन इज B। और ये x डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस कट किया आपने वो है dx। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? दिस इज द dx। अब इसके बाद इसकी FBD बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर FBD बनाई है, तो अगर आप देखेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दिस वन इज G, तो मैं इसका वेट कंसीडर करूंगा। जो ये आपको एलिमेंट दिख रहा है, इस एलिमेंट का वेट कितना हो जाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाय द G, mg। तो मास का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर ρL इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ρV इज द डेंसिटी ऑफ द वेपर। तो चूंकि इसके अंदर लिक्विड है इसलिए मैं इसकी डेंसिटी ρL कंसीडर कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। दिस इज द डेल माइनस वाई B इंटू dx, डेल माइनस वाई B इंटू dx इंटू G। ये mg हो गया। क्लियर? अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दिस इज द बॉयनेंसी फोर्स। बॉयनेंसी फोर्स क्यों लग रहा है? बॉयनेंसी फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ये लिक्विड किस चीज में आ रहा है? ये डेंसिटी डिफरेंस है। डेंसिटी ρL किसकी है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ρV किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ वेपर। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस होने की वजह से एक बॉयनेंसी फोर्स इसमें लगेगा, और ये बॉयनेंसी फोर्स कितना है? FB। ये कितना होगा? इक्वल वॉल्यूम पहले लगेगा, तो इक्वल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दिस इज ρV मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका जो इक्वल वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है, वॉल्यूम तो दिस इज द रो डेल माइनस वाई B इंटू dx हो गया। क्लियर? लेकिन जो इसमें जैसे आप एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो लकड़ी के टुकड़े का वेट mg, ठीक, mWg कह सकते हैं, और जो वाटर ऊपर की तरफ लग रहा है उसका मास। क्लियर? तो वो वही चीज मैंने कंसीडर किया है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ दैट वेपर, डेंसिटी ऑफ दैट वेपर जिसमें ये सबमर्ज किया जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहेगा, डेल माइनस वाई B इंटू dx इंटू G। इतनी बात समझ में आ गई? दो फोर्सेज ये हो गए। तीसरा फोर्स ये है जो शेयर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो शेयर फोर्स ये डायरेक्शन है, इसके अपोजिट में लगेगा, तो ये डायरेक्शन ये मैंने शेयर फोर्स यहाँ पर लगाया। शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? दिस वन इज that is a mu L is the viscosity, dynamic viscosity of the liquid multiplied by del U into del U upon del Y। क्लियर? ये हो गया shear stress multiplied by the area acting। तो एरिया कितना है? सॉरी, एरिया एक्टिंग कितना है? दिस इज द B इंटू dx। तो B इंटू dx। ये सारे फोर्सेस आपको अगर समझ में आ गए
तो इसके बाद हम लोग सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। मैंने एरिया याद होगा आपको, एक्सेलरेशन जो है उसको नेग्लेजिबल माना है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो हमको सिंपल एक काम करना है कि algebraic summation in forces x direction should be equal to 0। तो सिंपल बैलेंस हमको कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये देखिए, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द वेट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर कर लिया। वेट इज इक्वल टू रो एल जी डेल माइनस वाई बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू म्यू एल डेल यू अपॉन डेल एक्स बी इंटू डी एक्स प्लस रो वी जी बी, ये सारी चीज़ें कर ली। तो डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ से आप कैलकुलेट करिए। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन रखा है और ये एक्स डायरेक्शन रखा है, केवल एक चीज़ ये दिखाने के लिए कि आप देखिएगा इसका काफ़ी कुछ सिमिलर फैशन में आता है जो आपने वर्टिकल प्लेट का किया था नेचुरल कन्वेक्शन में, वैसा ही कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वाई डायरेक्शन ये है और एक्स डायरेक्शन ये डायरेक्शंस आप देखिए, वाई और ये एक्स डायरेक्शन। ओके, तो डेल यू और डेल वाई आपको कितना मिल गया, रो एल माइनस रो बी जी डेल माइनस वाई अपॉन म्यू एल। नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, और दिस वेलोसिटी इज वेरिएबल इन द वाई डायरेक्शन, तो इसको करने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के लिए y इज इक्वल टू 0 जब है, क्लियर, तो आप कहाँ पर है, सरफेस पे, तो आपका नो स्लिप कंडीशन है, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब y इज इक्वल टू y पर पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी यू वाई है, ठीक। अब ये कह सकते हैं कि अगर आप डेल पर पहुँच जाए तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो आप देखिए 0 टू डेल वाई एंड 0 टू वाई अगर सिंपल अप्लाई करोगे तो आपको जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिल रही है, वेलोसिटी प्रोफाइल इज इक्वल टू रो एल माइनस रो वी अपॉन म्यू एल जी, एंड दिस वन इज डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया आपका वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी तो आपको फिर मास फ्लो रेट मिल जाएगा। देखिए अगला कैलकुलेशन हमारा क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ कंडेंसेट। नाउ द मास फ्लो रेट ऑफ कंडेंसेट एट अ लोकेशन x where the boundary layer thickness is del is expressed as, clear। हमको मास फ्लो रेट कहाँ का निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ कंडेंसेट एट द लोकेशन x। किसी भी x पर आप जाइए, यानी अगर आप इस सिचुएशन को देखें कि हम मास फ्लो रेट यहाँ से मूव कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 ये है, मान लो कि किसी x पर यहाँ पर कितना मास फ्लो रेट इसका होगा कंडेंसेट का, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो नाउ द मास फ्लो रेट ऑफ कंडेंसेट एट लोकेशन x where the boundary layer thickness is del, जहाँ पर बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो del है, is expressed as mass flow rate is equal to क्या होगा, this one is because it's a variable mass, तो ये वेरिएबल मास को समेशन आप करते चले जाइए x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक। तो समेशन करेंगे तो इंटीग्रल आपने कर दिया, तो अब वेरिएबल क्या हो गया, रो एल यू वाई डी ए, ये बात समझ में आई। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 टू डेल में। अब बात करते हैं एरिया की, डी ए। सो डी ए एरिया इज बी इंटू डी वाई। अब यहाँ एक क्वेरी आपकी आती है और ये चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर एरिया देखें, ये एरिया है, सो एरिया इज दिस इज द बी इंटू दिस वन इज जो वेरिएबल एरिया है, दिस इज द वेरिएबल एरिया, दिस इज द बी इंटू दिस वन इज डेल माइनस वाई, क्लियर, डेल माइनस वाई, ये एरिया है, क्लियर। तो आप देखें यहाँ पर ये केवल b इंटू डी वाई लिया गया है। रीज़न एक चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देखें डेल इज़ वेरिएबल एंड y इज़ वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल थिंग्स। तो हम ये अगर इस एक्सप्रेशन में पीछे जाके देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे जाके आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो दिस इज़ द y, क्लियर, एंड दिस वन इज़ द डेल। डेल इज़ अ फंक्शन ऑफ y, माइंडेड, डेल इज़ द फंक्शन ऑफ y। तो हम या तो डेल को वेरिएबल रखें या y को वेरिएबल रखें। तो हम बेसिकली x और y यहाँ पर वेरिएबल टर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर y को वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। तो वेरिएबल अगर कंसीडर कर रहे हैं तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जो चीज़ मैंने लिखी थी उसमें एरिया, सिंपल अगर मैं इस एलिमेंट का एरिया देख रहा हूँ तो एरिया इज इक्वल टू दिस इज द b, ये एरिया आप ये देख रहे हैं, ये एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये एरिया। सो दिस इज द b इंटू डेल माइनस y, डेल माइनस y। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दिस वन इज b इंटू डेल माइनस दिस इज b इंटू y, ये होगा एरिया, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर dA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dA इज इक्वल टू दिस वन इज b इंटू दिस इज द डेल। तो
either you write the d del minus b into dy, क्लियर। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट फंक्शन है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग या तो y को वेरिएबल कंसीडर करेंगे या डेल को कंसीडर करेंगे, तो कोई भी एक कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को ना कंसीडर करके b इंटू डी डेल रख रहे हैं, और डेल की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं दिस इज b इंटू डी वाई, एंड दिस y इज वेरिएबल फ्रॉम 0 टू डेल, क्लियर। तो फाइनल वैल्यू इज डी डेल, but it is a variable value if you are talk about this is the dy. So that's why I am writing this dA is equal to b into dy. Is that clear? अच्छा, अब मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिमिट रख दी और आपने ui ये देखिए यहाँ पर कंसीडर कर रखा है, तो ui की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी और एरिया मैंने रख दिया जो dA एरिया था, दिस इज द b into dy. अब मास फ्लो रेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आपको इंटीग्रल कर देना है इसका। तो इंटीग्रल आप करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है, रो एल माइनस रो वाई जी अपॉन म्यू एल, ये कांस्टेंट है। बी इज आल्सो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट ही है। अब ये डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 को अगर आप करेंगे तो डेल वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई टू द पावर 3/3, तो दिस इज द 6, क्लियर। तो आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, मैंने इसको डायरेक्टली लिमिट लगा के सॉल्व कर लिया। तो ये वैल्यू आती है रो एल माइनस रो वी अपॉन 3 म्यू एल बी जी इंटू डेल क्यू। ये बात समझ में आ गई, ये आप इंटीग्रल करके देख लीजिए। और इसको आप मैं यहाँ पर देखिए, ये मास फ्लो रेट आपको एग्जैक्टली किसी भी डेल पर आपको मास फ्लो रेट की वैल्यू ये बता देता है। अब फर्दर इसको जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए मुझे एक ये टर्म चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बिकॉज डेल इज वेरिएबल इन x एंड y, बिकॉज डेल इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों में फंक्शन का डेल का फंक्शन है x और y में। ये चीज याद करिए, मैं कन्वेक्शन में आपको प्रूफ करा के दिखा चुका हूं कि डेल इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, क्लियर। तो डेल को अगर मास फ्लो रेट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रो एल माइनस रो वी अपॉन बी जी, ये सारी चीजें। लेकिन डेल क्या है, x में वेरिएबल है, तो डेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर, सॉरी 3 डेल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल स्क्वायर एंड डी डेल अपॉन डेल डी एक्स। ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। अब मुझे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द लैटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन इज HFG। सो विद इन एलिमेंट वॉल्यूम द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ पर अगर आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस क्या होगा, डेल क्यू जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डेल क्यू हीट ट्रांसफर हो रही है, दिस वन इज द मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय द लैटेंट हीट HFG, इसी के बराबर होगा, क्लियर। अब ये जो DQ है, अब अगर मैं इसको स्टेबल मान रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है, ये एक लिक्विड है। लिक्विड में मैंने क्या किया, लिक्विड की कंडक्टिविटी KL रखा, तो मैंने क्या कहा कि जो हीट लैटेंट हीट थी वो लैटेंट हीट कंडक्टिव हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो मैंने क्या किया, डेल क्यू इज इक्वल टू कंडक्टिव हीट लिखा, दिस इज KL मल्टीप्लाइड बाय द एक्टिंग एरिया, दिस इज द B इंटू DX। ये बात समझ में आ गई, एक्टिंग एरिया, दिस वन इज B, दिस वन इज DX, तो दिस इज द B इंटू DX मल्टीप्लाइड बाय डेल T ओवर डेल X। तो डेल T आप ओवर डेल X कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव में लिखना है हम लोग, तो सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस सरफेस टेम्परेचर, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंसीडर कर रहे हैं, तो सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस दिस डिवाइडेड बाय कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज डेल, फाइनल डिस्टेंस इज डेल माइनस वाई में अगर आप देखिए, अगर y को 0 पुट कर देंगे तो y को 0 पुट कर देंगे तो पूरी की पूरी डिस्टेंस आपकी निकल आएगी। आप पीछे वाले डायग्राम में देख रहे होंगे कि वो सरफेस से एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा होगा, इज दैट क्लियर। तो दिस वन इज डेल। तो यहाँ से आप इसको x के रिस्पेक्ट में ये देखिए dm था, इसको dx है, तो मैं dm अपॉन dx इंटू HFG अगर लिखूंगा तो KL B T sat माइनस TS अपॉन डेल, सिंपल। तो आप अगर इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों के RHS साइड, ये वाला साइड dm अपॉन dx, ये दोनों साइड इक्वल है। तो चलिए मैं dm अपॉन dx की वैल्यू उठा के यहाँ से इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा, चलिए आगे देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। अब देखिए मैंने वहाँ पे जो dm अपॉन dx था उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट की, तो आपको ये वैल्यू आपको फाइनली मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे d डेल अपॉन डेल एक्स, यानी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको साथ में ले लीजिए, और जितने वेरिएबल टर्म्स हैं जैसे डेल क्यूब डी डेल ये हो गया और इधर dx हो गया, बाकी के टर्म कांस्टेंट है। तो चलिए इनको इंटीग्रेट करते हैं। When x is equal to 0, boundary layer thickness is 0. When x is equal to some x, definitely this is the del x, that is a function of x.
तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज द डेल टू द पावर, सॉरी दिस वन इज द डेल टू द पावर 4, क्लियर, दिस इज द 4, दिस इज द डेल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, बाकी चीज़ ये x आ जाएगी। तो यहाँ से आप डेल x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज़ें एक साथ अगर लिखें तो दिस वन इज 4kl म्यू एल टी सैट माइनस टी एस एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज g रो एल माइनस रो वी इंटू एच एफ जी, ये चीज़ आ गई। और डेल एक्स टू द पावर 4 था तो डेल एक्स इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। बाउंड्री लेयर थिकनेस एट एनी एक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखाया। फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए आपको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लोकल और एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं वो कंसीडर करते हैं। तो सिंपल आप देखिए कि जो भी कंडक्टिव हीट लिक्विड के अंदर है वो कन्वेक्शन हीट के बराबर ही है। तो कन्वेक्शन हीट इज इक्वल टू कंडक्टिव हीट, ये पहले मैं करता आया हूँ। तो कन्वेक्शन हीट इज इक्वल टू कंडक्टिव हीट अगर करेंगे एलिमेंट की तो दिस इज द एच एक्स, किसी भी एक्स पर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो एच एक्स है। एरिया बी इंटू डी एक्स है, ये देखिए एरिया बी इंटू डी एक्स, यानी वही जो कंडक्शन का एरिया है वही इसका भी एरिया होगा। एंड दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जो आपने वेपर कंसीडर किया है और जो लिक्विड जिसके साथ में कंडेंसेट बना। तो दिस इज द सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस टी एस एंड दिस इज द के एल बी इंटू डी एक्स टी सैट माइनस टी एस अपॉन डेल एक्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर डेल नहीं लिखा, क्लियर, आई एम सो सॉरी, दिस इज द उस पर्टिकुलर एक्स पर जो जिस पर हम बी इंटू डी एक्स कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक्स पर जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी जो है ये किसी भी वेरिएबल डिस्टेंस पर ये डेल एक्स है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा, थोड़ा सा नोटेशन ऐसा मैंने लिखा हुआ डेल एक्स, क्लियर। तो ये किसी भी एक्स पर बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू है। तो सिंपल आप यहाँ पर देखो बी इंटू डी एक्स एंड बी इंटू डी एक्स विल बी कैंसिल आउट, टी सेट से ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास एच एक्स इज इक्वल टू के एल अपॉन डेल एक्स बचता है, के एल अपॉन डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो एच एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस कम्स g रो एल माइनस रो वी एच एफ जी के एल क्यूब अपॉन 4 म्यू एल टी सैट माइनस टी एस एक्स टू द पावर 1/4। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर, कि एच एक्स की वैल्यू आपके कंडेंसेट की कितनी होगी वो इतनी है। एवरेज वैल्यू सिंपल वही जैसे पहले कैलकुलेट करते हैं, 0 टू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द जो आपने फ्लैट प्लेट कंसीडर की थी, वर्टिकल फ्लैट प्लेट, उसकी लेंथ है। तो 0 टू एल के बीच में एच एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दिस कम्स 4/3 टाइम्स ऑफ एच एल। सो एच वर्टिकल, या ध्यान रखिएगा आपको इसी का यूज करना है, ये कम यूज होता है क्योंकि लोकल वैल्यू आपसे कोई नहीं पूछेगा, एवरेज वैल्यू पूछी जाती है। तो एच वर्टिकल अगर आप करेंगे तो मैंने क्या किया, इसमें जो ये 1/4 था और 1/4 टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 अगर आप करेंगे करके देखिए तो दिस कम्स 0.943, ध्यान रखिएगा 0.943 in bracket this is g rho l minus rho v hfg kl cube upon mu l t sat minus ts x to the power 1/4. This is a very important, इसको आपको याद करना होगा। This convective heat transfer gives your ideal, ये वैल्यू जो है ये ideal condition because we are following some assumptions. So ideal heat transfer is h vertical जो आया है multiplied by surface area multiplied by t sat minus ts करके निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली क्वेश्चन में आपको एक्चुअल वैल्यू पूछता है, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर इज कैलकुलेटेड बाय मैकडम करेक्शन। व्हाट इज द मैकडम करेक्शन, मैकडम टोल्स दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिराइव्ड अबव इज 20%, जो अभी मैंने जस्ट पहले किया, 20% लोअर वैल्यू एज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू, सो दैट मैकडम प्रपोज टू यूज 1.13 in place of coefficient in place of 0.943, जो 0.943 आपको था उसकी जगह पर अगर आप 1.13 कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि जो आपने एच वर्टिकल अभी कैलकुलेट किया आइडियल कंडीशन के लिए 0.943, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, 1.2 से, क्योंकि उसको 20% आपको इंक्रीज करना होगा। ये बात समझ में आया। या तो आप एच मैकडम इसको कैलकुलेट करें और 1.13 ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे, बाकी की वैल्यू सेम है, केवल ये मल्टीप्लिकेशन बदला, वहाँ 0.943 था, यहाँ 1.13 है। तो आपको एक्चुअल हीट ट्रांसफर जब आप इवैल्यूएट कर रहे होंगे तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर इज इवैल्यूएटेड बाय, उस समय पर जब आप करेंगे तो मैकडम का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लेंगे, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय टी सेट माइनस टी एस, ये सारे कैलकुलेशन आपको करने होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि what is the effect of non-condensable gases on condensation on horizontal tube and tube bed।
सबसे पहले मैं इफेक्ट ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस के बारे में बताऊं, बिकॉज दीज आर द टू टॉपिक्स। इफेक्ट ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस, देखिए जो कंडेंसेबल गैसेस नहीं होंगी वो क्या करेंगे, वो एक थर्मल बैरियर प्रिपेयर करेंगे बिटवीन द सरफेस, जो कंडेंसर का सरफेस है, और जो फ्रेश वेपर है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाएगी। यही चीज मैंने लिखी है, इफेक्ट ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस ऑन कंडेंसेशन। द नॉन कंडेंसेबल गैसेस सच एज एयर associated with condensing vapor produce a thermal resistance between the condensing surface and vapor so that rate of condensation is reduced। याद होगा आपको कि जब मैंने आपको कंडेंसर पढ़ाया था तब आपको ये मैंने बताया था कि कंडेंसर के अंदर से एयर को रिमूव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एयर अगर उसमें अवेलेबल होगी तो वो एक थर्मल बैरियर की तरह एक्ट करेगी, और थर्मल बैरियर एक्ट करने की वजह से क्या होगा कि आपका पर्टिकुलर जो फ्रेश एयर वेपर जो कांटेक्ट कर रही है कंडेंसर सरफेस को, वो नहीं कर पाएगी और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को रिड्यूस कर देगी। सो दैट तो मास ऑफ कंडेंसेट आपको कम मिलेगा और डेफिनेटली द इफेक्टिवनेस जो कंडेंसर की होगी वो रिड्यूस कर जाएगी। सो दैट फॉर मैक्सिमाइजिंग द रेट ऑफ कंडेंसेशन इन कंडेंसर ऑलवेज वी डिजाइन सच अ वे दैट एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस एस्केप फ्रॉम द कंडेंसर बाय द वैक्यूम पंप। याद होगा आपको, वैक्यूम पंप भी वहाँ पर लगाया जाता है। अब दूसरा बात करते हैं कि अभी तक तो हमने सब चीज़ें वर्टिकल के लिए देखी हैं, लेकिन अगर हॉरिजेंटल मान लेते हैं सरफेस है, सरफेस जो है वो ट्यूबिकल सरफेस है। जैसे आप ये ट्यूब देख पा रहे हैं, ट्यूब की डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर d है, तो इसमें कंडेंसेशन कुछ इस तरह से होगा। जो फिल्म है ये फिल्म वाइज कंडेंसेशन का है, और कंडेंसेट कुछ इस तरह से ड्रॉपलेट फॉर्म में नीचे आएगा, सॉरी इस फिल्म फॉर्म में नीचे आ रहा है, ये कंडेंसेट है आपको। तो एवरेज वैल्यू कन्वेक्टिव हीट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सपोज वो हॉरिजेंटल है, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे द एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर वन, केवल अगर एक हॉरिजेंटल ट्यूब आप कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज द एच बार। याद करिए वहाँ 0.943 था, ये यहाँ पर जो वैल्यू है दिस इज द 0.725, क्लियर। एंड दिस इज द आप इसको एक्चुअल या आइडियल की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो आइडियल कंडीशन थी 0.943 वर्टिकल के लिए, ये पोजीशन अब 0.725 हो जाएगी, और x जो यहाँ पर था वहाँ पर d लिख दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ये देखिए d लिख दिया गया। लेकिन अगर सपोज करो कि n ट्यूब्स आपकी अगर आ जाती हैं, तब क्या किया जाएगा, h बार इज इक्वल टू 0.725 ही है, बाकी आप ऊपर का टर्म देख रहे हैं सेम है, यहाँ पर भी देख रहे हैं सेम है, यहाँ पर n आपने मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू डी एन टी सैट माइनस टी एस। यानी आप अगर यहाँ पर एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर एन ट्यूब देख रहे हैं, हॉरिजेंटल ट्यूब, और उसके लिए नंबर ऑफ ट्यूब आपको मालूम है, तो दिस इज 1/n⁴ मल्टीप्लाइड बाई h हॉरिजेंटल फॉर वन ट्यूब करके कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इफ द ट्यूब लेंथ इज l, तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो सिंपल आप अगर देखेंगे तो वर्टिकल के लिए 0.943 था और डिवाइडेड बाय 0.725, तो दिस कम्स 1.3, एंड डेफिनेटली उसका जो l टर्म था ये 1/l हो गया, और उसका जो d टर्म था ये 1/d हो गया, तो d/l टू द पावर 1/4। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट टॉपिक है इसका छोटा सा, हीट पाइप। हीट पाइप इज लाइक वर्क लाइक अ रेफ्रिजरेटर, जो एयर कंडीशन की तरह एक्ट करता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और वो सराउंडिंग में ड्रॉप कर देगा। यही आपका जो रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट है, यही है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हीट पाइप के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई भी पंप, कोई भी कंप्रेसर, कुछ भी इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल नहीं की जाती हैं। तो अगर एक पाइप देखेंगे, इस पाइप में आप देखिए 3 सेक्शंस हैं। वन सेक्शन एक्ट एज अ इवापोरेटर सेक्शन, दिस सेक्शन एक्ट एज अ दिस सेक्शन एक्ट एज अ कंडेंसर सेक्शन, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, एंड जो सेंटर का पोर्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एडियाबैटिक सेक्शन। ये एक्चुअल में होता क्या है कि एक मेटल का पाइप होता है और उसमें हम लोग विक मटेरियल लगा देते हैं। विक मतलब आप वायर मेश लगा दीजिए या आप उसमें कोटिंग करिए इस तरह से कि वो पर्टिकुलर जो लिक्विड या वेपर है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इस तरह की लाइनर लगाते हैं। तो ये जो मेटल है आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, ये कॉपर पाइप है, ये वाला, क्लियर। और ये आपका विक है। विक आपका ऐसा मटेरियल होता है जो एब्जॉर्ब, जो कैविटी क्रिएट करे, जो वॉइड्स क्रिएट करे, इस तरह के मटेरियल को हम लोग विक बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक लेस बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड किसी प्रेशर पर फिल कर देते हैं। मैं बाद में पढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसके अंदर यहाँ पर इस पाइप के अंदर फिल कर दिया और इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया, यानी अब ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर कोई डिफरेंस नहीं करेगा। मान लेते हैं उसका प्रेशर P है, यहाँ पर मान लेते हैं ये प्रेशर P है।
अब क्या हुआ कि आपने इसको इस सेक्शन इस तरह से इंस्टॉल किया कि जहाँ से आपको हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप देखिए ये आपने ऐसे पोर्शन ऐसे सराउंडिंग में लगाया जहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो अगर हीट एक्सट्रैक्ट हुई तो ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ये लिक्विड इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली उसका प्रेशर राइज होगा, और प्रेशर राइज होगा साथ साथ में क्या होगा, उसका फेज कन्वर्सन होगा। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। वेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑलवेज इट इज मूविंग फ्रॉम द लो टेम्परेचर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो हाई प्रेशर यहाँ इस रीजन में आप देखिए हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये जो वेपर है वो लो प्रेशर रीजन में जाएगी। तो लो प्रेशर रीजन यहाँ है, ये जो आपको कंडेंसर सेक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर जब ये वेपर आता है, ये वेपर यहाँ पर आया, तो ये जो किसके साथ कांटेक्ट में है, ये सराउंडिंग के साथ में कांटेक्ट में है। तो वेपर का जो टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इन दोनों में डिफरेंस है। यानी अभी जैसे मैंने कंडेंसर आपको बताया, यानी वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो अब यहाँ से क्या होगा, वेपर अपने टेम्परेचर को लूज करेगा सराउंडिंग में। तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, और जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है वैसे इसका प्रेशर रिड्यूस होगा। अब प्रेशर रिड्यूस होगा, चूंकि लिक्विड है, ये विक मटेरियल जो हमने लगाया, ये विक क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब हो गए। अब अगर विक में देखेंगे, ये भी विक मटेरियल है, यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा विक में और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो थ्रू द विक ये लिक्विड जो है ये फ्लो करेगा और इस रीजन में आ जाएगा, और इस रीजन में आएगा, फिर से हीट इन होगी, ये प्रोसेस होता रहेगा। ये पार्ट इंसुलेटिंग पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन पार्ट है इसको इंसुलेट कर दिया गया। तो इस तरह का आप अगर प्रोसेस में देखें तो इस तरह के प्रोसेस में कोई भी आपका मूविंग पार्ट नहीं रखा गया है, मूविंग पार्ट नहीं रखा गया है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन करीब 15 डिग्री या 5 डिग्री से 15 डिग्री टेम्परेचर का चेंज मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखें इस सराउंडिंग के टेम्परेचर जो मान लीजिए जिस जगह से आपको लेना है उसके टेम्परेचर को ये करीब 5 डिग्री या 10 डिग्री 15 डिग्री के आसपास डिपेंड करता है कि किस तरह का हीट पाइप और किस तरह का आपने रेफ्रिजरेंट यूज़ किया है इसमें। इज दैट क्लियर? तो आप इसको एक बार फिर से देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके बाद हम लोग फर्दर इसको आप एक बार फिर से देखेंगे तो पूरी चीज़ें समझ में आएंगे, और फर्दर इसके बाद हम लोग इसमें कंडेंसर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।